Squadron leader Vijay Changure, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमर ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartabya path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartabya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard arriving to escort the President of India and Chief the presidential carriage moving forward out of position. The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades
and a glimpse into its future aspirations. Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms, and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable, and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, our similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartabya, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort
the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गण्यमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here, a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees, a lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहाँ पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहाँ पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से
प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today, we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफ़ी बड़ा इलाका है, सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर ये ऐसे क्षण जिन्हें यहाँ मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy, resting on transition of generations of people, of parties and power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहाँ दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाज़ा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहाँ मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts. And that courage and valor was the lens we used to view the parade.
Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people to people relationships, being connected to the people, connecting the people, that is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartabya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है। हां, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्र पथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। छब्बीस जनवरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थल पर स्वागत किया जा रहा है। बीएपीएस पदाधिकारी स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के प्रेरक सान्निध्य, अनुपम स्नेह वात्सल्य एवं अपार कृपाशीष का अनगिनत बार अनुभव किया है। ऐसे हमारे भारतवर्ष के लोक लाडले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस विराट महोत्सव के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। इस विराट महोत्सव के प्रांगण में महोत्सव के प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी एवं गुजरात की धुरा का वहन करने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल आदि का हार्दिक सत्कार है। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के वरिष्ठ संत वर्यों ने सभी महानुभावों का सत्कार किया। आइए अब महान संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में विनम्र वंदना करते हुए इस महोत्सव का प्रारंभ वेदोक्त विधि पूर्वक करें, जो हमारी हजारों वर्षों की प्राचीन भारतीय परंपरा रही। जिन्होंने असंख्य लोगों के तप्त एवं त्रस्त जीवन में शांति का वरदान दिया था, ऐसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का बचपन का नाम ही शांतिलाल था। अतः आइए वेदोक्त शांति पाठ से इस पूजन विधि का प्रारंभ करें। पूजन विधि के प्रत्येक चरण पर बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के बाल युवा मांगलिक प्रस्तुति करेंगे, जो परम आनंद के इस अवसर पर हमें भी अनुपम अनुभूति कराएगा। असतो
हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार अब करोड़ों भक्तों एवं भाविकों की ओर से परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री पूर्ण कलश में जल को धारण करते हुए इस महोत्सव के मंगल आरंभ का पवित्र वेदोक्त संकल्प विधि करेंगे। प्रधान संकल्पः नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यभूमौ गुर्जरराज्ये कर्णावती नगरे प्रमुखस्वामी महाराजलरैति महाशुभस्थाने मासोत्तमे मासे मार्गशीर्षमासे कृष्णे पक्षे षष्ठ्यां तिथौ बुधवासरे प्रकटब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराजानां तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी नाम्नां महानुभावानाम् अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां मम तथा च आत्मनः वेदोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वेषां जीवनानां सर्वांगीण तक्षणार्थं तथा च सर्वेषां जीवने दिव्यता प्राप्त्यर्थं भारतवर्षस्य अमृतमहोत्सव पर्वणि सकलराष्ट्रस्य सर्वांगीण उत्कर्षार्थं सर्वत्र सुखशान्ति प्रवर्तनार्थं भगवतः सतां च पूजनपूर्वकं ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराजानां भव्य दिव्य नव्य शताब्दी महोत्सवस्य मंगलशुभारंभम् अहं करिष्ये। महोत्सव के उद्घाटन का ये मांगलिक संकल्प विधि हुआ। यह महोत्सव सनातन भारतीय संस्कृति के एक महान संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव है। इसलिए इस भव्य महोत्सव का आरंभ करेंगे भगवान एवं संतों के वैदिक पूजन से। इस महोत्सव स्थल के विशाल भव्य एवं कलामंडित प्रवेश द्वार संत द्वार के गवाक्षों में भारतवर्ष के महान संतों की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। आइए इस महान संत परंपरा के चरणों में पूजन अर्चन अर्पण करते हुए परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण एवं परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रतिमाओं का पूजन करें। नारायणाय नमः। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय नमः। श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पूजनार्थे पुष्पाणि अक्षतांश्च समर्पयामि। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन दीपक समान परोपकारी था, जो दूसरों के अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करते थे। उनका जीवन पुष्प समान था, जो स्वयं को कुचलने वालों को भी सुवासित करता था। उनका जीवन कमल के समान निष्कलंक एवं निर्लेप था, जो इस संसार कलिमल में रहते हुए भी शुभ्र पवित्रता की पवित्र प्रेरणा देता रहा था। उनका जीवन सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में हमारा भला है, दूसरों के सुख में हमारा सुख है। आइए उनकी
इस जीवन भावना के साथ सभी के सुख के लिए उनकी प्रिय वैदिक प्रार्थना का मंगल गान करते हुए हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और आइए अब हम परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करें कि इस भव्य, दिव्य और नव्य महोत्सव स्थल प्रमुख स्वामी महाराज नगर के मुख्य प्रवेश द्वार संत द्वार का उद्घाटन करके इस महोत्सव का शुभारंभ करें। सरे गुरु जीवन ज्योत जले, शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी विश्व सकल जयकार करे। स्वामी की जन्म शताब्दी विश्व सकल जयकार करे। सकल जयकार करे, विश्व सकल जयकार करे। अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार, अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। प्रमुख स्वामी शताब्दी का जय जयकार, अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। प्रमुख स्वामी शताब्दी का जय जयकार, स्वामी का जय जयकार, महंत स्वामी का जय जयकार, अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। प्रमुख स्वामी शताब्दी का जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार, प्रमुख स्वामी शताब्दी का जय जयकार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के કરકમલો છે મુજબ જ વર્તતા તેઓના કરકમળ હર હંમેશ ભક્તિ સમય અને શ્રદ્ધાસભર રહેતા તેમની વિવિધ મુદ્રાઓના દર્શન અહીં થાય છે।